Good evening, everyone. How are you? I hope audio and video is okay. Should we start? Hi, everyone. Good evening. Everyone, have you joined? Please confirm. Let's start then. Good evening, Gurpreet, Akanksha, Charu, Karthik, Charu, Karthik, Neelav. Please confirm, guys. I don't want you to miss. Good evening, Charu, Karthik, Neelav. Good evening, Neelav. Hi, Karthik. Perfect. You guys have not joined the first session, which we have it on Monday. Okay. Have has everyone seen the rec classes? Everyone done the rec classes? Yeah. Okay. Okay, Neela. So is that your first class? Have you seen in the classes? You have not seen the classes, the rec classes? Is that your first subject, Neela? Okay. I don't think, Neelav, then it is going to be helpful for you because TCP is more of an extension of the reg. So first, it's going to be better you see the reg lectures and then join the TCP as the subject, else you will not understand a single thing here. Okay. So maybe you can start with some other subject or you can start with that reg itself because you will not understand a thing then. Okay. Gurpreet, you have seen the TCP lectures previously also, right? No, but you were asking me the queries about the TCP earlier. Okay. I'm saying if you have seen the TCP, then you don't need to see it. It's just the same thing only. People who have seen it, then it's not necessary because I'll be going as per the new student itself. Okay. On Monday, I've asked you to see the C Corporation lecture. I'm not sure whether you guys have seen the C Corporation lecture or not. Have you seen the C Corporation lecture of the reg? Hmm. So Charu, you have done the TCP for TCP. You have done with the Becker, right? TCP classes you have done with the reg with the Becker, not done. Okay. So we'll be doing the classes with the Glyme. कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास Becker है, then it's okay. We'll be doing with the Glyme. Will not matter much. Okay. Have you seen the lecture, guys? I've asked you to see the reg lecture. Have you seen the reg C corporation वाला lecture देख लिया आपने? Akanksha has seen it. Karthik has seen it. Charu, you have seen it. Gurpreet, no. I've asked you to see it, no? On this. As you will not understand this. अब इसमें ना हम reg में क्या करेंगे? कुछ lectures हम you have to see the lectures only then you will understand the going forward lectures. Otherwise आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है? तो प्लीज रेगुलरली जो भी क्लासेस कर रहे हैं उसके लिए रैग के लेक्चर्स मैं आपको बताता जाऊंगा तो देखते जाइएगा. अब आपकी मर्जी है गुरप्रीत, आप देख सकते हो आज की लेक्चर या फिर आपको एक बार रैग देख लो तब देख लेना आप. ठीक है. अभी मैं थोड़ा स्लो चलूंगा बिकॉज आई नो मेनी पीपल हैव नॉट सीन द लेक्चर तो आई गो अकॉर्डिंगली इटसेल्फ. ओके. रेस्ट यू हैव सीन इट. ओके. परफेक्ट. एनी क्वेश्चन बिफोर आई मूव गाइस? किसी का कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन? नहीं. We discuss in the reg, guys, how many types of entities would going to be. There are two kinds of an entity. One is going to be DT, second is going to be PT. Double DT means double tax entity. PT means, what do you mean by PT, guys? PT means pass through entity. Pass through entity. Double tax entity, that means taxes would be levied how many times? Two times. One, the company will pay the taxes. Second, shareholder will pay the taxes. What is the example of double tax entity? C corporation. Pass through entity. Wherever
company and the shareholder, who is going to pay the tax? Shareholder will pay the tax, not the company. For example, S corporation. For example, partnership firm. Partnership firm does not pay the taxes, rather the partner pays the taxes. Is that okay, guys? ठीक है. I'll move from here, guys. Um, if how any person become the shareholder. So I'll be starting with the C corporation, guys. Okay, I'll be starting with the C corporation. Why do we call this C corporation, guys? Why do we call this C corporation? Hmm? Why do we call this C corporation? We call this C corporation because it is governed by subchapter C of IRC. सब चैप्टर सी ऑफ आईआरसी, जैसे इंडिया में होता है सेक्शन 80C होता है, 80D होता है, दीज आर कमिंग अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो जैसे नॉर्मली बेयर एक्ट के अंदर एक सेक्शन होता है, चैप्टर होता है, उसके अंदर ये लॉज हैं. सिमिलरली सब चैप्टर सी आईआरसी के अंदर सी कॉर्पोरेशन डिफाइंड है, इसलिए वी कॉल इट सी कॉर्पोरेशन. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट सब चैप्टर एस आल्सो. सब चैप्टर एस के अंदर डिफाइंड है एस कॉर्पोरेशन, गाइस. पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय विच सब चैप्टर? Partnership firm is governed by subchapter K, guys. ठीक बात है, but we don't call it K corporation, guys. How any person become the shareholder of a company, guys? या फिर तो आप कैश दोगे, या आप कोई प्रॉपर्टी दोगे, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, right? That's how you are going to be the shareholder. So basically, in short, I will call it PCS, property, cash, or service. ठीक है. Let's say if someone has given the cash, guys, anyone has given the any person has given the cash $10,000 and the company is giving the stocks to the person. Is it going to be taxable for the person? Is it going to be taxable for the taxpayer? You are giving the cash and you are receiving the stocks. नहीं, shares taxable नहीं होंगे, capital gains नहीं होगा. Why not? You are purchasing the shares, right? You are purchasing the share. Purchase of shares तो कुछ नहीं होगा ना. What is going to be the cost for this? What is going to be the basis? याद है आपको हमने basis किया था? बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस का मतलब होता है सिंपली योर कॉस्ट. तो आपने जो भी कैश दिया है कंपनी को, वट एवर द कैश यू हैव गिवन टू द कंपनी वुड बी योर बेसिस. यू हैव गिवन द कैश टू द कंपनी, कंपनी के लिए वुड दैट बी टैक्सेबल? वुड दैट बी टैक्सेबल फॉर द कंपनी? नहीं, कंपनी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा. आई होप इट इज ओके, पॉइंट क्लियर. ठीक. Why is it important for you to know the basis कि कितना basis है मेरा? Why is it important for you to know the basis? करेक्ट. सो फ्यूचर में जब भी आप उसको सेल करोगे, जब भी आप फ्यूचर में सेल करोगे, हाउ विल आई नो कि मेरा गेन कितना है, लॉस कितना है, जब मुझे कॉस्ट ही नहीं पता उस चीज की. सो फॉर गेटिंग टू नो दैट आई नीड दैट. करेक्ट. ठीक. दिस इज सी. Second is, guys, maybe taxpayer has provided the services and company is giving the stocks. आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी और कंपनी ने आपको स्टॉक्स दे दिए. स्टॉक की फेस वैल्यू है $3,000, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टॉक्स की है $10,000. जब आप ये रिसीव कर रहे हो 2025 में, गाइस, इज दिस गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर द टैक्स पेयर? Receiving the stocks of $10,000, is that going to be taxable? Nine. No. It is going to be taxable. It is going to be taxable. This is going to be ordinary income.
वी हैव डन दिस। अगर मैंने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी होती, ठीक है, सैलरी नहीं होती, ऑर्डिनरी इनकम होती है। अगर मैंने सर्विस प्रोवाइड की होती और मुझे कैश मिल रहा होता, तभी तो ये मेरी इनकम होती ना गाइस। इज दैट ओके? गुरप्रीत, क्लियर? दिस वुड बी माई इनकम, राइट? तो कैश की जगह मुझे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तभी इट इज गोइंग टू बी माई इनकम। दिस इज गोइंग टू बी माई ऑर्डिनरी इनकम। आई होप इट इज ओके पीपल। What is going to be the taxpayers basis in this? Taxpayer का basis क्या होगा इसमें? Fair market value basis is going to be $10,000. Clear guys? So if you remember, we have done that table also कि अगर transaction taxable है, then the basis क्या होता है? Fair market value. And then the period of holding कहाँ से start होता है? From the date of transfer. Remember? But if the transaction is non-taxable, then it is going to be net book value, and the period of holding will start from original date. Remember, guys, this is what we have done in reg also. Same funda. Akanksha, clear? Okay. Quickly try one question. Taxpayer has provided the services and taxpayer is getting the stocks. Stocks की fair market value is $1,000. This is in 2024. ये stocks taxpayer ने बेच दिए for $3,000 in 2030. How much gain or loss in 2024? How much gain or loss in 2030? And the nature of the gain in both the scenarios. And in 2024 account में करेक्ट 2024 में गुरप्रीत होगी ना, ऑर्डिनरी इनकम होगी मेरी 1000 की, एंड दैट बिकम्स माय बेसिस. तो 2030 में आई विल हैव अ LTCG of $2,000. गुड. एनी क्वेश्चन? नहीं? ठीक है. We have done cash, we have done service. क्या बच गया? Cash हो गया, service हो गया. What is that? Property. That means if the taxpayer has given any asset, property to the company so that you become the shareholder. ठीक है, तो आपने कोई प्रॉपर्टी दोगे और कंपनी आपको स्टॉक्स दे देगी गाइस. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी और द एसेट कुड बी ऑफ टू टाइप्स गाइस. इट कैन बी एपी, it can be DP. AP means appreciated property. DP means depreciated property. Give me any example of appreciated property. Land. Give me any example of depreciated property. कार. तो आप कह रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी जिस पर डिप्रीसिएशन लगेगा वो डिप्रीशिएटेड प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जिस पर डिप्रीसिएशन नहीं लगेगा वो अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी. एम आई राइट? दिस इज करेक्ट विच यू आर गोइंग टू रीड इन फार. फार में ऐसा होता है. ठीक है, फार में ऐसा होता है. यहां क्या होगा? अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी मीन्स वेन एवर फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन नेट बुक वैल्यू, इसको हम बोलेंगे अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी. Whenever it is reverse, that means net book value is more.
then the fair market value, we will call it depreciated property. Scenario clear है guys? Clear, Karthik? ठीक है. तो दैट मीन्स अगर शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया एसेट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है $100, नेट बुक वैल्यू है $60, एपीडीपी. करेक्ट. दिस इज गोइंग टू बी एपी. सिनेरियो क्लियर है? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए प्लीज. नो, शुड आई मूव नाउ? whenever shareholder is going to give any appreciated property, यहाँ पे shareholder appreciated property कंपनी को दे रहा है, shareholder will recognize the gain. How much gain shareholder will recognize here guys? $40. Whatever is the difference, shareholder will recognize the gain. ऐसा क्यों? मान लेते हैं कि shareholder प्रॉपर्टी नहीं देता, ठीक है, कंपनी ने कहा आई विल नीड ओनली कैश, देन व्हाट विल यू से? आपके पास कोई एसेट है, इसको आप बाहर जाके बेचोगे. कितने की बेचोगे आप बाहर? ऑब्वियसली एट फेयर मार्केट वैल्यू में बेचोगे, $100 की बेचोगे आप. तब आपको कितना गेन होगा? सेम $40 का गेन होगा. इस गेन पे टैक्स पे करोगे आप? बिल्कुल पे करोगे. तो आपने रादर देन बाहर बेचने की जगह यू हैव डायरेक्टली गिवन टू द कंपनी. In this case, still we are going to recognize the gain in the hands of a shareholder. Point clear hai, everyone? Any doubt? Any question? No, not clear? People, not clear? But अगर shareholder ने, which point काटते? Gain वाला point clear है? Gain recognize करेगी, shareholder will recognize the gain. Whenever you are giving the appreciated property, shareholder will recognize the gain. But if you have given depreciated property, that means fair market value is 100, net book value is 160, APDP, DP. यहां पे लॉस होगा गेन होगा? लॉस होगा. बट शेयर होल्डर विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस लॉस. डीपी पे लॉस होगा, वी विल नॉट रिकॉग्नाइज. दैट्स हाउ द लॉ इज. क्लियर पीपल व्हाट आई एम सेइंग? यस, नो? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आर वी गुड? टैक्स पेयर ने सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है, एंड द कंपनी हैज गिवन स्टॉक्स जिसकी वैल्यू है $1,000. इज दैट गोइंग टू बी टैक्सेबल टू द टैक्स पेयर? $1,000 is going to be taxable as ordinary income. Is company going to get the reduction of this 1,000? Is company going to get the reduction for this 1,000? हाँ, मिलेगी कंपनी को रिडक्शन, बिल्कुल मिलेगी. अगर मान लीजिए कंपनी स्टॉक्स नहीं देती, कंपनी स्टॉक ना देके कंपनी कैश देती है आपको $1,000 का, तब कंपनी को रिडक्शन मिलती है 1,000 की गाइस. यस, तो सेम ही चीज है ना. इंस्टेड ऑफ गिविंग द कैश मैंने स्टॉक्स दे दिए, स्टिल आई विल गेट द रिडक्शन. इज दैट सिनेरियो क्लियर पीपल? So we have done PCS, property, cash, service. मैं वापस से प्रॉपर्टी पे आता हूँ. How many types of property we have discussed, guys? कितनी तरह की property you can get? Two, AP, DP. I'll talk about AP. Whenever taxpayer is giving the AP to the company, would you recognize the gain? Is the taxpayer going to recognize the gain? Yes, we have done. You will recognize the gain. This is general rule that you will recognize the gain. Obviously, I'll talk about the exception. Exception का मतलब क्या है, guys? What do you mean by the exception?
करेक्ट. एक्सेप्शन मीन्स आई विल नॉट रिकॉग्नाइज द गेन. किस पे? सर्विस के केस में बोल रहा हूं मैं. सर्विस के केस में बोल रहा हूं. नहीं, एपी के केस में. एपी के केस में स्पेशली आई विल नॉट रिकॉग्नाइज. दैट मीन्स आप एपी भी अगर दे रहे हो, इवन इफ यू आर गिविंग द अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज द गेन. क्लियर एवरीवन? चारू क्लियर? कार्तिक क्लियर? ठीक. दिस इज व्हाट नोन एज सेक्शन 351. तो आई विल डिस्कस विद यू कंडीशंस ऑफ सेक्शन 351. तो आई विल डिस्कस विद यू सेक्शन 351. 351 की कुछ कंडीशंस हैं व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू लेटर. तो अगर 351 की कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है, दैट मीन्स आई विल नॉट रिकॉग्नाइज द गेन. लेकिन अगर 351 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स आई हैव नॉट सेटिस्फाइड 351, विल आई रिकॉग्नाइज द गेन? देन आई विल रिकॉग्नाइज द गेन. आई होप इट इज ओके. पॉइंट क्लियर? क्या कंडीशन है पता नहीं, विल सी दैट. विल सी दैट. सिनेरियो क्लियर? शुड आई मूव? देयर आर टू कंडीशंस. मैं पहले एक कंडीशन करूंगा आपके साथ. दैट फर्स्ट कंडीशन इज कंट्रोल. After you have transferred the appreciated property, you should have a control. Who should have a control? Shareholder should have a control or the company should have a control? Shareholder should have a control. Shareholder should have a control on the company. अब आप में से कितनों ने फार करा हुआ है गाइस? नहीं, किसी ने नहीं किया. ओके. यू इन फार कंट्रोल के लिए कितनी ओनरशिप लेते हो आप? हाउ मच ओनरशिप यू टेक फॉर ओनरशिप फॉर दिस? Correct. You take in the US gap we take more than 50%. बट IRS थोड़ा सा, IRC थोड़ा स्ट्रिंजेंट है. यहाँ पे हम देखते हैं 80%. तो when I'm saying you should have a control, that means ownership should be 80%. Is that clear what I'm saying? तो अगर शेयर होल्डर की ओनरशिप, shareholder is having 80% control in the company, 80% control in the company, then we will say that boss इसके पास control है, then we will not recognize the gain. Is that scenario clear what I'm saying? Yes, no? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं. मान लीजिए एक सोल प्रोपराइटर है, ठीक है, देयर इज अ सोल प्रोपराइटर. दिस सोल प्रोपराइटर सेज कि मुझे अपनी एक कंपनी बना लेता हूं. सो सोल प्रोपराइटरशिप इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी. नाउ इस कंपनी के पास, इसके पास कितने शेयर्स होंगे कंपनी के? 100%. 100%. इज इट पॉसिबल एक एक शेयर होल्डर किसी कंपनी में? यूएस में इज इट पॉसिबल दैट यू आर हैविंग वन शेयर होल्डर इन द कंपनी? पॉसिबल है. हमने एस कॉर्पोरेशन भी किया था, एस कॉर्पोरेशन में हमने किया था. सेम यहाँ भी पॉसिबल है गाइस. ठीक है. दिस पर्सन इज हैविंग 100%. तो अगर ये बंदा सोल प्रोपराइटरशिप कन्वर्ट करते समय, यू आर ट्रांसफरिंग द एसेट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 है, नेट बुक वैल्यू 60 है. तो है तो अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी. दिस इज अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी गाइस. बट आर यू गोइंग टू रिकॉग्नाइज द गेन? आंसर इज नो. Because after this conversion, you are having 100% control in the company. Since you are having the control in the company, 351 is satisfied. Since the 351 is satisfied, you will not recognize the gain here, guys. Point clear or not? Clear? Remove. ठीक. कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, कीप आस्किंग. जो भी आपको लगता है प्लीज कीप आस्किंग. थोड़ा ट्रिकी टॉपिक्स हैं, तो whatever doubt you are having, please ask. बुक की लैंग्वेज बहुत ही हॉच पॉच है. मैं बाद में करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट जब कर लेंगे तब हम बुक में पढ़ेंगे. अदरवाइज यू विल बी वेरी कंफ्यूज. ओके. कोई भी क्वेश्चन है अभी तक गाइस? एनीवन, एनी क्वेश्चन? नहीं. ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. नहीं. कार्तिक, तारू. ओके. यस, यू हैव अ क्वेश्चन तारू?
सुनने में ये लगता है कि यार 1 पर्सन, आई एम सेइंग यू शुड हैव अ कंट्रोल, सुनने में ऐसा लगता है कि दैट 1 पर्सन शुड हैव अ कंट्रोल, बट दैट्स नॉट द केस. When I'm talking about a control, I don't mean that only 1% is having a control. It is possible multiple people is having a control. For example, there are three partners A, B, C, and everyone is holding 1/3, 1/3, 1/3. सबने AP दिया, appreciated property, and then you have created the company. अब आफ्टर दैट ए को कितनी ओनरशिप मिलेगी गाइस, कितने परसेंटेज स्टॉक्स मिलेंगे ए को? 33. सबको मिलेंगे 33.33, 33.33, 33.33, राइट? तो इज ए हैविंग 80% स्टेक, इज हैविंग मोर देन 80% स्टेक गाइस? नहीं. बट दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर बिकॉज तीनों के तीनों कंट्रोल ग्रुप का पार्ट है. एक साथ बने ना शेयर होल्डर कंपनी के अंदर, तीनों के तीनों कंट्रोल ग्रुप का पार्ट है. तो ऐसा बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि यू 1% शुड होल्ड इट. सिंस entire control group is having control, is the entire control group is having the control, that means are they having more than 80%? Yes. Yes. अगर ये सिनेरियो है then 351 is satisfied. 351 is satisfied, then you will not recognize the game. Clear है सिनेरियो? Let's say there are two partners A and B. A के पास है 60%, B के पास है 40%. A is giving a land जिसकी fair market value is 5,000, net book value is 2,000. B is giving a building for which fair market value is 15,000 and net book value is 12,000. Clear है scenario? Both A and B क्या दे रहे हैं? AP या DP? A और B क्या दे रहे हैं? AP या DP? करेक्ट. बोथ आर गिविंग द AP. क्या ट्रांसफर के बाद, ओनरशिप ट्रांसफर के बाद इज 1% इज होल्डिंग द 80% गाइस? नहीं. बट इट डज नॉट मैटर. क्या कंट्रोल ग्रुप के पास मोर देन 80% ओनरशिप है? यस. कंट्रोल ग्रुप के पास मोर देन 80% है. That means 351 is, if they are having the control, since they are having the control, 351 is satisfied. Since 351 is satisfied, is A going to recognize the gain? नहीं. Is B going to recognize the gain? Clear है? ठीक. मान लेते हैं कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है. ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ओनरशिप है 75% ऑलरेडी. अब ये दो नए शेयर होल्डर आ रहे हैं. ए के पास मिलेगी 10% ओनरशिप, बी को मिल रही है 15%. सिनेरियो क्लियर है? ठीक. इज ए और बी द पार्ट ऑफ द कंट्रोल ग्रुप? इज ए और बी द पार्ट ऑफ द कंट्रोल ग्रुप? नहीं. नहीं. अब ऐसे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दो कहेंगे अरे ये, बट ये तो पूरे ओनरशिप का तो पार्ट है ही ना, ए और बी बाकी शेयर होल्डर मिला के 100% हो रहा है. ऐसे तो सारे शेयर होल्डर हमेशा 100% ही होंगे ना. ऐसा तो कोई कंपनी नहीं मिलेगी आपको जिसमें ओनरशिप सिर्फ 20% है. ऐसे तो हमेशा ये ओनरशिप 100% हो रही है. बट क्या नए शेयर होल्डर्स कंट्रोल ग्रुप कर रहे हैं? नहीं. दे आर हैविंग 25%. सिनेरियो क्लियर गाइस? दैट मीन्स ए और बी, आर दे हैविंग द कंट्रोल? नहीं, they don't have the control. That means is A going to recognize again? Yes. Yes. Point clear? Akanksha clear? Similarly, is B going to recognize the gain? Yes. Clear? Should I move? सेम क्वेश्चन करता हूं मैं, थोड़ा सा चेंजेस करता हूं.
Net book value is 5,000. Sorry, fair market value is 5,000. Net book value is 8,000. In this case, is B going to recognize the gain? हमने कर लिया. Yes. A के केस में AP है या DP है? DP है. Is A going to recognize the loss? 351 एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे. 351 एप्लीकेबल हो रहा है. नहीं. They do not have the control. तब भी recognize नहीं करोगा. Please understand. 351 है सिर्फ अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन. 351 है सिर्फ अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन. ये लग गया तो गेन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. ये नहीं लगेगा तो गेन रिकॉग्नाइज करेंगे. एंड ऑफ स्टोरी. लॉसेस के केस में या सर्विसेज के केस में लॉस कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. नेवर. Whenever you are providing the services, it is always going to be taxable as ordinary income. तो इसका 351 से कोई कनेक्शन नहीं है. यहाँ पे people generally get confused in the MCQs language. So I'm just very clearly telling you guys. Is that point clear what I'm saying? People, Karthik, clear? Guys, कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए. No? I'm writing few notes. Section 351 will result in non-recognition of gains. अच्छा. नॉन रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है आपकी. सो नॉन रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, नॉट. When I'm saying you are having a control, you should have a control. क्या एक बंदे के पास कंट्रोल होने की बात कर रहा हूं मैं कि यार एक बंदे के पास कंट्रोल है, एक के पास फुल 80% कंट्रोल है? नहीं. वी आर लुकिंग एज द कंट्रोल ग्रुप. ठीक है. तो कंट्रोल ग्रुप में कितने लोग होंगे? एक होगा, दो होंगे, पांच होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, कितने लोग होंगे? IRC डज नॉट डिफाइन दैट. IRC डिफाइन नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ पीपल होंगे इन दैट केस. सो देयर इज नो statutory limitation on number of people in CG. CG is control. There is no limitation as such, guys. Sure, Karthik. इसका ले लीजिए आप screenshot, then I'll go back. Done, Karthik? Let me know. Is it done? स्क्रीनशॉट ले सकते हो कार्तिक आप. डन. अच्छा, सुनने में अभी क्या लग रहा है ना कि मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल लाइक दिस आल्सो कि A, B, C. क्या किसी भी कंपनी में सिर्फ इंडिविजुअली शेयर होल्डर हो सकता है? That means, is it possible a company is a shareholder in another company? Possible. तो सिमिलरली यहां भी
कंट्रोल ग्रुप में ये कंफ्यूज मत करना आप कि कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ इंडिविजुअल इंक्लूडेड है, नहीं। आई एम राइटिंग अ नोट फॉर दिस। कंट्रोल कंट्रोल ग्रुप includes it includes individuals, it includes individuals, trust, state, partnership, association, and corporation. ठीक। अब आपको याद हो, आई हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो। इज इट पॉसिबल कि कंपनी के पास अलग अलग तरह के इक्विटी शेयर्स हैं, जिनके पास कभी वोटिंग भी है, वोटिंग भी नहीं है? इज इट पॉसिबल कि देर आर फ्यू इक्विटी शेयर? पॉसिबल। तो मैं जो 80% देख रहा हूँ वो किसका होगा, वोटिंग वालों का या नॉन वोटिंग वालों का? दोनों का, दोनों का। ठीक है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल, when I'm talking about the control, which is going to be 80% or more of voting also plus non-voting also. दो। एक 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 छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके बाद। रूल्स रिगार्डिंग सेक्शन 351 exchanges also apply to एस कॉर्पोरेशन। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है रैग में, कि ऐसा नहीं है कि एस कॉर्पोरेशन कहीं ऊपर से उतर के आई है कोई कंपनी है। काफी सारे रूल्स एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्पोरेशन के काफी कॉमन होंगे। तो जो 351 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट वहां भी है। सेम 351 आप एस कॉर्पोरेशन में भी देखोगे, तो मैं डबल नहीं कर पाऊंगा, यहीं करेंगे, वहां करने की जरूरत नहीं है। ए 60% है ए के पास, बी के पास 40% हो जाएगा ट्रांसफर के पास। ए ने अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी दी, विच इज लैंड। लैंड की वजह से नहीं है अप्रिशिएटेड, इसकी वजह से है। ठीक है। बी ने कैश दिया गाइस, कितना? 10,000 मान लेते हैं, और मान लेते हैं कुछ नहीं, 4,000। Is A and B part of the control group? हाँ, बिल्कुल, because after that they are having it. Is A going to recognize the gain here? Hmm. Yes. Why? Control group का part है, फिर क्यों recognize करेंगे गुरप्रीत आपको? Because दोनों AP नहीं दे रहे हैं, that's why। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, since they are the part of the control group। Since they are the part of the control group, that means they are having the control। कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ने कैश दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। You will not recognize the gain। Can I clear what I'm saying? तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को एपी दोगे तभी गेन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वी विल स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज इट। कार्तिक क्लियर है? ठीक है। तो दैट मीन्स इफ लेट्स से देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी सी, 10%, 50%, 40%। ठीक है। ये दे रहा है एपी, ये दे रहा है कैश, ये भी दे रहा है कैश।
First of all, is A, B, C, are A, B, C part of the control group? Are A, B, C part of the control group? Yes. Is A going to recognize again? अरे बट वो तो बाकी लोग तो नहीं दे रहे ना, बाकी लोग तो नहीं दे रहे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, उससे फर्क नहीं पड़ता. As far as you are the part of the control group, you are the part of the control group, you are having the control, 351 is satisfied, that means you will not recognize the game. Scenario clear है guys, everyone? ठीक है, क्लियर करते, ठीक है. ए 10% है जिसके पास है, जिसने एपी दिया है गाइस, ठीक है, अकाउंट से क्लियर. बी 50% है जिसने कैश दिया है. सी जिसके पास 40% है उसने सर्विस दिया है. क्या ये पॉसिबल है, तीनों ने अलग अलग चीजें दी है? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है. बट यहाँ कैच है, यहाँ कैच है. जब भी एनी वन इज गिविंग द सर्विस, ठीक है, एनी वन इज गिविंग द सर्विस, उसको 351 की, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ 351 we will not include that in the control group. Whoever I am providing the services and I'm receiving the stocks, such kind of a person, जैसे C here, will not be the part. We will not assume it to be the part of the control group. Is that clear or not? That means कौन बचा, कौन कौन बचा? A and B, A and B. क्या A और B के पास कंट्रोल है? नहीं. That means does A have to recognize the gain? Yes. A has to recognize the gain. I hope it is okay. Point clear or not? Are they clear? I'm just writing a note for this. Stocks exchanged for services is not counted towards 80% ownership. Oh, 20%, 30%, 50%. And both A and B is giving AP. A and B will recognize the gain. क्या A और B gain recognize करेंगे? Yes. Because they are not together, put together, they are not owning 80%, so they have to recognize the gain. बिल्कुल ठीक बात. Okay. 40%, 50%, 10%. 40%, 50%, 10%. Is A and B will recognize the gain. नहीं, बट ए सी को निकाल देंगे ना गाइस, फिर भी होगा, फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. इज ए और बी हैविंग द कंट्रोल? ए और बी के पास कंट्रोल है, बिल्कुल है. दे आर हैविंग द कंट्रोल नाउ. Since they are having the control, 351 is satisfied. Since the 351 is satisfied, they will not have any. Scenario clear है या नहीं है guys? बात क्लियर है? इतनी अजीब चीज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ये कॉन्वर्सेशन जो मैं अब आपके साथ करने वाला हूँ, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये मैं आपको थोड़ा इंडियनाइज वर्जन बता रहा हूँ जो ऑब्वियसली आपके लिए कहीं नहीं मिलेगा आपको. अब ऐसी इतनी अजीब चीज क्यों कर रहे हैं, 351 क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप में से कितनों ने कभी भी इंडियन टैक्सेशन पढ़ा है? यस, रेज योर हैंड्स. नॉट रेज योर हैंड्स, टेल मी यस और नो. यस चारो. एट व्हाट लेवल हैव यू स्टडीड, ये भी एक बार थोड़ा सा बता दो मुझे.
जैसे सीए इंटर, कॉलेज, सीए फाइनल, या कॉलेज, कॉलेज में सीए फाइनल, सीए इंटर, सीएस इंटर। ठीक है, तो सभी ने पढ़ा। अच्छी बात। अब आपको याद हो गाइस, एक सेक्शन हुआ करता था कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स होता है इंडिया में, राइट? आपको पता ही होगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन याद है किसी को? व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स? सेक्शन 45, बिल्कुल। सेक्शन 45 होता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कि किससे चार्जेबिलिटी क्रिएट हो, ठीक है। तो सेक्शन 45 दो चीजें बोलता है, जो मुझे याद है, मैंने भी बहुत सालों पहले की थी सीए। दो चीजें बोलता है कि भाई, एक तो आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है, नंबर टू, उस कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर कर दिया। क्या मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है, अगर उस कैपिटल एसेट को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो आपका कैपिटल गेन्स होगा। सिनेरियो क्लियर है एवरीवन? आकांक्षा क्लियर? तो यही करते हैं हम हमेशा। स्टॉक्स है, स्टॉक्स कैपिटल एसेट है, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम पे, मैंने बेच दिया, सेल कर दिया, तो कैपिटल गेन्स हो जाता है, इसीलिए कैपिटल गेन्स होता है आपका। आई होप इट इज क्लियर व्हाई वी आर हैविंग द कैपिटल गेन्स। सिनेरियो क्लियर? अब इसमें प्रॉब्लम है गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको लिटरल पढ़ूंगा तो, लिटरल पढ़ूंगा तो एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैं एक सोल प्रोपराइटर हूं, अपना अच्छा मस्त अपना बिजनेस कर रहा हूँ कोई, मुझे लगता है कि यार एक काम करता हूँ, अब इसको ना मैं कंपनी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सारी एसेट उठा के कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करूंगा। क्लियर है? तो व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग माय एसेट, मेरी एसेट हो गई कैपिटल एसेट, और मैंने एसेट ट्रांसफर कर दी कंपनी के नाम पे, तो क्या कैपिटल गेन्स लगेगा या नहीं? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बिकॉज चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन तो कह ही रहा है ना बॉस, कैपिटल एसेट है प्लस ट्रांसफर है, इसलिए कैपिटल गेन्स लगेगा। सिनेरियो क्लियर है या नहीं है गाय? चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्लियर है पीपल? अच्छा, तो ऐसे अगर अगर हम ऐसे ही आंख बंद करके लगाने लगे, कैपिटल एसेट हो गया, ट्रांसफर पे टैक्स लगा दो, कैपिटल एसेट, तो ऐसे तो कोई कन्वर्ट ही नहीं करेगा। कोई सोल प्रोपराइटरशिप को ट्रांसफर कन्वर्ट नहीं करेगा। पार्टनरशिप के साथ भी सही प्रॉब्लम होगी, मैं पार्टनरशिप को कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो ऐसे तो लोग कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट चाहती है आप कंपनी बनाओ, बिकॉज गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट आप कंपनी क्रिएट करोगे तो आप बहुत सारे कंप्लाइंसेस करोगे, आरओसी की फीस दोगे, गवर्नमेंट को तो बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहती है आपको, तो ये अजीब सा सेक्शन है 45, जिसके चक्कर में भाई इसने बोला कैपिटल एसेट ट्रांसफर, चुपचाप से टैक्स दो। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेक्शन 47। अब 47 में बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, उसमें मेंशन है ये सब, कि भाई सोल प्रोपराइटर को ट्रांसफर कर रहे हो कंपनी में, हटाओ। पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे, हटाओ। तो ऐसी चीजें उन्होंने मान लिया कि अगर ये कर रहे हो, तो हम इसको बोलेंगे भैया ट्रांसफर नहीं, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कह देंगे नहीं नहीं नहीं, ये कोई ट्रांसफर नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? पीपल क्लियर? ठीक है, क्लियर एवरीवन? कार्तिक, अगर आप देखो ना, इसका भी काफी सिमिलर नेचर है, इसका भी काफी सिमिलर नेचर है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कि यार सोल प्रॉपराइटर है, ये अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है जब यहाँ पे कंपनी में, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी है, तो मैं कहूंगा गेन मान लोगे। लेकिन आप देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, सोल प्रॉपराइट कुछ भी है, मेरे पास अगर 80% है, मैंने ट्रांसफर कर दिया, चाहे सोल प्रॉपराइटर हो या कोई भी हो, मैंने ट्रांसफर कर दिया अपनी अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी, लेकिन उस कंपनी का मेरे पास 80% ओनरशिप है, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ एक तरह से फॉर्म ही चेंज किया है। हो सकता है सोल प्रॉपराइटर से कंपनी बनाई है, या मैंने पार्टनरशिप से कंपनी बनाई है, या मैंने इन वे कोई स्ट्रक्चर ही चेंज किया है, तभी तो दोनों कंडीशन है, कि यार आपके पास 80% कंट्रोल है, तो इन वे आई एम ट्राइंग टू चेंज द फॉर्म। इसीलिए यहाँ पे भी यही सेम चीज है, कि 80% कंट्रोल है, दैट मीन्स इन अ वे यू आर जस्ट चेंजिंग द फॉर्म, दैट्स व्हाई वी विल नॉट हैव अ गेन। सिनेरियो क्लियर? अदरवाइज तो सेम पंगा यहाँ भी पड़ेगा ना गाइस, सेम प्रॉब्लम यहाँ भी होगी। कोई सोल प्रॉपराइटर कन्वर्ट ही नहीं करेगा, कोई पार्टनरशिप कन्वर्ट ही नहीं करेगी गाइस। सिनेरियो क्लियर पीपल? व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? चारू क्लियर? This is just for your knowledge. This is just for your knowledge.
जस्ट टू द एंथू कटलेट, जस्ट फॉर योर इंथुजियाज्म ओनली, कि कभी सोचो कि यार इतना अजीब सी चीज क्यों बनाई है, दैट्स व्हाट द रीजन इज। एग्जाम में दे विल नॉट आस्क यू, किसी भी बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना बैकर ना ग्लाइम कहीं भी, इज जस्ट द माई रीडिंग ऑफ द सेक्शन इटसेल्फ गाइस। सिनेरियो क्लियर? शुड आई मूव गाइस एवरीवन? ठीक। नाउ व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द एसेट, हो सकता है आप अलग अलग तरह की एसेट अलग अलग ट्रांसफर कर रहे हो सकता है ए बी सी, तीन लोग हैं, तीनों एपी ट्रांसफर कर रहे हो, पॉसिबल है? पॉसिबल। ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन वुड बी गिविंग द बिल्डिंग, दिस पर्सन वुड बी गिविंग लैंड, दिस पर्सन वुड बी गिविंग कार। तो सबका ट्रांसफर जरूरी है एक ही दिन एग्जैक्टली सेम डे हो जाए और आपको स्टॉक भी सेम डे मिल जाए? मे बी नॉट, मे बी नॉट। ठीक है। कभी होता है कॉन्ट्रैक्ट डीड ट्रांसफर करने में टाइम लग जाता है, कभी कभी लैंड डीड में टाइम लग जाता है, कभी कार को आरटीओ में जाके करवाना पड़ता है, तो हो सकता है 2 4 5 दिन या हफ्ता भर कहीं और हो जाए। तो इस केस में अगर थोड़े दिन का या थोड़े हफ्तों का गैप है, तब भी देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम हियर। इज दैट ओके व्हाट आई एम सेइंग? So I'm just writing a clarificatory note here. Transfer of assets or stocks must not take place on same date. एक तो होता है मैं कहूंगा कि मस्ट टेक प्लेस ऑन द सेम डे, तो फिर तो सब चीजें एक ही दिन होनी चाहिए। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग मस्ट नॉट टेक प्लेस ऑन द सेम डे, तो थोड़े दिन का गैप हो सकता है इसका मतलब। गाइस क्लियर? must not take place on the same day to get advantage of section 351। सेक्शन 351 का एडवांटेज क्या है? सेक्शन 351 का एडवांटेज है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ गेन्स। However, difference of couple of days day months would be fine as far as it is part of pre-approved plan. Done? अच्छा, क्या ये जरूरी है कि प्री अप्रूव प्लान का मतलब है गुरप्रीत कि मैं हम तीनों के तीन, मान लीजिए एक शेयर होल्डर है यहाँ पे ऑलरेडी जिसके पास 100% शेयर होल्डिंग है। अब हम तीन लोग हैं, हम तीन फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए ए बी सी, हमने तीनों ने नेगोशिएट किया कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एंड वी आर गोइंग टू पुट दैट मच मनी। तो आप मुझे हमें कितने दोगे आप? 30, हमें 20 से 20 समवन एल्स। तो ये पार्ट है, हम इतने पैसे डालेंगे, इतनी इतनी ओनरशिप मिलेगी, तो हमारी पार्ट है, हम तीनों एक साथ डालेंगे उसके अंदर। तो हो सकता है मेरे को कार ट्रांसफर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लैंड में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वो ओवरऑल उस नेगोशिएशन का ही पार्ट है हमारा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। आई डोंट थिंक इतना टेक्निकल आएगा आपके केस में, बट जनरली कोई नॉलेज। ठीक है। अच्छा, इज इट मैंडेटरी कि मैं नई कंपनी के लिए लगाऊंगा, मतलब इट हैज टू बी अ ब्रांड न्यू कंपनी ओनली? 351 ब्रांड न्यू कंपनी में ही काम करेगा? नहीं, इट कैन बी इन द एग्जिस्टिंग कंपनी ऑल्सो। सिनेरियो क्लियर गुरप्रीत? क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये न्यू कंपनी में लगेगा, एग्जिस्टिंग कंपनी में भी काम करेगा, इट्स जस्ट नॉट एन इशू। दैट मीन्स एक काम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए दिस इज अ कंपनी जिसमें इस बंदे के पास 100% ओनरशिप है, इसके पास 100 शेयर्स हैं और 100% ओनरशिप है। नाउ ए आता है, ए ने दिया एपी, अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी दिया कंपनी को,
और इसके बाद ए के पास मिल गए 900 शेयर्स। तो हाउ मच ओनरशिप ए विल हैव इट नाउ? नाउ हाउ मच ओनरशिप ए विल हैव इट? ए नया शेयर होल्डर है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 100 थे, ए ने आके 900 शेयर्स नहीं लेगा, तो ए के पास 90% शेयर होल्डिंग रह गई, इसकी शेयर होल्डिंग घट के 10% रह गई। तो इज ए गोइंग टू रिकॉग्नाइज द गेन हियर? नहीं, because A is the part of the control group, so A will not recognize the gain. Simple. Clear what I'm saying? ठीक। Do you understand what is treasury stock? आपने काफी उन्हें फार किया हो तो आपको पता होगा what is treasury stocks. Treasury stocks. Buyback is treasury stocks. Buyback is not treasury stock. Stock redemption is treasury stocks. Stock redemption is buyback. बायबैक होने के बाद जो शेयर्स आते हैं उनको ट्रेजरी स्टॉक्स बोलते हैं, राइट? जो भी शेयर्स आ रहे हैं बायबैक होने के बाद, स्टॉक रिडम्पशन के बाद, बायबैक इंडिया में, इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जो भी शेयर्स हम परचेज करके आ जाते हैं उसको ट्रेजरी स्टॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन आई एम सेइंग कि क्या हो रहा है, यू हैव गिवन अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी एंड यू आर रिसीविंग द स्टॉक, यू आर गिविंग द अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी एंड यू आर रिसीविंग द स्टॉक्स। इज इट पॉसिबल आपको नए स्टॉक ना मिलकर ट्रेजरी स्टॉक्स मिल रहे हो? पॉसिबल है। मैं एक बार पहले ट्रेजरी स्टॉक बता देता हूँ, हो सकता है सब किसी ने किया ना हो। व्हाट इज ट्रेजरी स्टॉक्स गाइस? हो सकता है किसी कंपनी ने शेयर्स इशू करे हो 1000, थोड़े दिन बाद आपने उसमें से 100 शेयर्स को बाय बैक कर लिया, यूएस में बोलते हैं स्टॉक रिडम्पशन कर लिया। अब ये स्टॉक 100 स्टॉक्स जो आपने बाय बैक बोल दिया कर दिया, इसको बोलते हैं हम ट्रेजरी स्टॉक्स गाइस। क्लियर आंसर? क्लियर? ठीक है। अभी ये ट्रेजरी स्टॉक का क्या करेंगे? क्या करते हो आप ट्रेजरी स्टॉक्स का गाइस? रखे रहते हो? क्या करते हो आप इसको? यू कैन री इशू द शेयर्स, व्हाट एल्स? यू कैन कैंसिल द शेयर्स ऑल्सो। कई बार आप कैंसिल कर सकते हो, कई बार आप सिर्फ रख लेते हो अपने पास कि देखेंगे फ्यूचर में क्या करना है। सो यू कैन कैंसिल द शेयर, यू कैन स्टोर द शेयर, यू कैन री इशू द शेयर्स। इसकी अकाउंटिंग आपने फार्म में की होगी, आई एम नॉट गोइंग देयर ऑल्सो। ठीक है, तो यू कैन कैंसिल इट, स्टोर इट एंड यू कैन री इशू दैट ऑल्सो। ठीक है, वो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट होती है चारू, वो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट होती है, वो अलग चीज है। दैट्स नॉट द सेम। ठीक है, ये है मैंने अपने शेयर्स परचेस करके कर दिए। ऑब्वियसली ये एसेट साइड भी दिखाई देगी आपको, फिर हम फार्म में जा रहे हैं, फार्म में आप पढ़ोगे, बट ऐसे भी कर सकते हो ना। मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाऊंगा मैं यहाँ पे 1000 और ट्रेजरी स्टॉक्स यहाँ आएगा 100, या ये मैं माइनस करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, बट ये आप फार्म में करोगे, मैं नहीं कर रहा इसके साथ कुछ। ठीक है, तो इसके साथ आप री इशू भी कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब है आप इसको री इशू भी कर सकते हो। तो इस केस में मैं बात कर रहा हूँ कि क्या 351 में जो नए शेयर्स इशू हो रहे हैं क्या वो ट्रेजरी स्टॉक्स भी हो सकते हैं गाइस? हाँ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर आकांक्षा? क्लियर व्हाट आई एम सेइंग गाइस? क्लियर? एनी क्वेश्चन एनीवन? ठीक। आई हैव डन विद यू ओनली वन कंडीशन टिल नाउ। एक ही कंडीशन की है अभी तक मैंने आपके साथ, विच इज यू शुड हैव अ कंट्रोल। मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ आपके साथ। फर्स्ट कंडीशन इज कंट्रोल, सेकंड कंडीशन इज नो बूट। नो, नो बूट का मतलब, अगर मान लीजिए सोल प्रोपराइटर बिजनेस से आपने कन्वर्ट किया है कंपनी में, ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। इज दैट ओके गाइस? सेकंड कंडीशन इज जब भी ये सोल प्रोपराइटर अपने नए ऑफिस में जाएगा, ऑफिस के बाहर जूते उतार देगा, ऑफिस में शूज अलाउड नहीं होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज नो बूट। इज दैट ओके पीपल? डू यू थिंक इट इज करेक्ट? नो, नो बूट का मतलब शूज नहीं है। बूट का मतलब, नो बूट का मतलब, नो बूट का मतलब है कि
आपको स्टॉक्स के साथ क्या मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग, टैक्स पेयर इज गिविंग अप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी, और कंपनी आपको क्या दे रही है, स्टॉक्स। कभी कभी कंपनी स्टॉक्स के साथ आपको कैश भी दे देती है, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ एसेट भी दे देती है, कुछ आईफोन दे दिया आपको कंपनी ने। तो व्हेनेवर कंपनी इज गिविंग एनीथिंग अदर देन द स्टॉक, ठीक है, स्टॉक्स के अलावा कुछ और भी देती है, इसको हम बूट बोलते हैं। सिनेरियो क्लियर है? क्लियर गाइस? ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं, नो बूट, आई एम सेइंग नो बूट, नो बूट। तो इसका मतलब क्या है, क्या मिलना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए कंपनी से, इसका मतलब करेक्ट, यू शुड गेट ओनली स्टॉक्स। आई होप इट इज ओके। यस, नो? ठीक। ये कंडीशन इतनी इतनी हार्श नहीं है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन इतनी फर्मली नहीं लगाएंगे हम। मैं इसको थोड़ी देर में मॉडिफाई कर दूंगा, आज करूंगा या कल करूंगा, विल सी दैट। ये कंडीशन को एकदम से पकड़ के नहीं बैठना है, इसको कंडीशन को थोड़ी फ्लूइड है इसके केस में, ठीक है, हम देखेंगे इसको थोड़ी सी मॉडिफाई गोइंग फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज डू। डन। नाउ आई हैव कन्वर्टेड द इंटायर टॉपिक, बुक में आप पढ़ के चलेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक बार देख लेंगे बुक में से, कैन वी रीड एनीथिंग। आई एम ऑन स्टडी यूनिट 5 गाइस, ठीक है, कंप्लाइंस सी कॉर्पोरेशन, एंड आई एम ऑन पेज नंबर 6, जिसके पास भी बुक है, क्लाइंट, ठीक है। कॉर्पोरेशन फॉर्मेशन, कॉर्पोरेशन फॉर्मेशन सुन के लगता है कि यार नई कंपनी होनी चाहिए क्या, बट ये क्या जरूरी है कि नई कंपनी होनी चाहिए गाइस? नहीं, वी हैव डन द एक्सेप्शन ऑफ दैट, दैट इट विल वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग कंपनी आल्सो, ठीक है। इफ अ टैक्स पेयर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, मनी एंड प्रॉपर्टी टू अ कॉर्पोरेशन इन एक्सचेंज फॉर द स्टॉक इन दैट कॉर्पोरेशन, सेम ही होंगे, क्यों, क्या हुआ? सेम ही होंगे मोर other than the qualified, non-qualified preferred stocks. And immediately afterward, the taxpayer is in the control of the corporation. The exchange is usually non-taxable. This rule applies both to the individual and to the group to whom you are transferring the corporation. It also applies whether the corporation is being formed or already operating. Done that. Mm, these we'll discuss later. 351. 351 requires that no gain or loss would be recognized if the property is transferred by one or more person solely in exchange for the stock. ये कौन सी कंडीशन है? Solely in exchange for stock. This is basically note boot. Guys, clear what I'm saying? This is no boot. Second, immediately after the exchange, such person is having the control. So this is the second condition, control. Is it 2 by 2 or 1 by 2? That means I'm supposed to satisfy both the condition or either of the condition. Hmm? Both the conditions. We are supposed to satisfy both the condition, not one of the condition. Guys, clear everyone? No, yes, maybe. कोई doubt है तो पूछ लीजिए दोस्त. Control is ownership of 80% of the voting and 80% of the non-voting also.
स्टॉक्स एक्सचेंज फॉर द सर्विसेज इज नॉट, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था गुरप्रीत। स्टडी यूनिट 5 सी कॉर्पोरेशन। आपके पास कौन सी बुक है गुरप्रीत, बैकर या ग्लाइन? नहीं, वी आर डूइंग फ्रॉम द ग्लाइन ना, टोल्ड यू। आप बुक ही नहीं दिख रही है आपको गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग, पूछ भी नहीं रहे हो मेरे से, कहाँ सो रहे हो आप लोग? आपको बुक भी नहीं दिख रही मेरी, आप दिखेगी आपको तो, पूछ भी नहीं रहे हो आप लोग। स्टडी यूनिट 5 कंप्लायंस सी कॉर्पोरेशन, ग्लैम है दोस्त, ये ग्लैम है। आप पूछ भी नहीं रहे हो, मैंने इतना सा पढ़ा दिया आपको, पूछ तो लो, आपको बुक ही नहीं दिख रही। अब मैंने इससे यो येलो मार्क किया, उसको पढ़ लीजिए एक बार प्लीज, जस्ट येलो मार्क। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। सी दिस ऑल्सो येलो मार्क। डन, चारू डन। अब ये पढ़ लीजिए। इज इट क्लियर, जो भी आपने येलो पढ़ा है, ठीक है? इज इट क्लियर? आकांक्षा, कार्तिक, पढ़ लीजिए गाइस, बाद में आप खुद से पढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। डोना एक्सचेंजेस प्रॉपर्टी जिसकी एडजस्टेड बेसिस 18,000 है, फेयर मार्केट वैल्यू 35,000 है, एपीडीपी, एपी, ठीक है, फॉर 70 शेयर्स, 70 शेयर्स के लिए डोना को एपी दे रही है डोना। एवरलिन ने सर्विस प्रोवाइड की है, कितने की? 15,000 की, फॉर 30 शेयर्स। तो कितने परसेंट मिल रहा है डोना को? हाउ मच डोना इज गेटिंग? 70 शेयर्स मिल रहे हैं डोना को। टोटल कितने शेयर्स हैं? 100। तो डोना को 70% मिल रहा है गाइस। तो इज डोना इज हैविंग द कंट्रोल? नहीं। तो इज डोना गोइंग टू रिकॉग्नाइज द गेन, दिस माइनस दिस? यस, कितना? 17,000, इज दैट ओके? 17,000 is going to be the gain. Now, Everlyn is providing the services, कितनी? 15,000 की. Is that going to be taxable? हाँ, ordinary gains, बिल्कुल, पढ़ लीजिए जल्दी से। Yes, ask your counselor, they'll give you.
We'll share with you. They are not provided yet. Have you raised your complaint via LMS? LMS में आपने डाला? Email them via LMS. जो भी आपकी queries है, they'll answer for that. Sure, I can't help with this. Actually, I can't share you because of the copyrights. So ना मैं दे देता. You have to take it from them only, or at least try to get the. If they are not giving the PDF, then see if they can give you hard copy. They can courier you the printout of that. Write to them, email them. They'll respond on the email. Yeah. Email me, they will not say no. That's what I'm saying. You raise your concern via LMS, no? How do you raise your concern via LMS? No, no. You write the query section या कुछ होता है ना आपके LMS में. मैंने देखा नहीं एक्चुअली आपका LMS वर्क है इसकी. To do from there. हेल्प डेस्क में एक बार लिखिए वहां पे. रेकमेंड व्हाट कार्तिक? कोई फर्क नहीं पड़ता कार्तिक. आप बैकर भी कर सकते हो, ग्लाइम भी कर सकते हो. देखो दो चीजें हैं इसमें, दो अप्रोच है. ठीक है. अब इट्स योर चॉइस विच वन यू टेक. या फिर तो अगर आपको बैकर थोड़ा तो देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम. ठीक है. मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं भी यही परेशान हो रहा होता कि यार पढ़ा तो ग्लाइम में से रहे हैं, मेरे पास बैकर है, तो मैं कहाँ ढूंढता रहूँ. ठीक है. और वो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है. आई आई एम एब्सोल्युटली विद यू. बट ऑनेस्टली आप मेरी समस्या भी समझो कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. मैं अगर बैकर पढ़ा सकता तो मैं आपको बैकर पढ़ा देता. मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि आप मेरा देखो ना, पिछला पिछला बैच मैंने बैकर ही पढ़ाया है पूरा. ठीक है. बट दिस टाइम VGLD इज सेइंग कि नहीं, आप ग्लाइम ही पढ़ाइए. सो आई हैव नो चॉइस बट टू टीच यू ऑन द ग्लाइम इटसेल्फ. एक काम कर सकते हो अगर आप, सो व्हेन दे हैव प्रोवाइडेड ग्लाइम PDF तो इसके लिए भी ले सकते हो ना आप आकांक्षा. अच्छा, दूसरी मेरी बात सुन लीजिए एक बार पूरी पहले. तो आप एक तरीका कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, बट वो इतना फूल प्रूफ नहीं होगा. अगर आपको बैकर की ही वीडियोस देखनी है तो आप मेरे पुराना बैच देख सकते हो, विच आई हैव डन फॉर द बैकर. लेकिन हाँ, थोड़े अपडेट्स आ गए हैं उसके बाद, चेंजेस हो गए हैं थोड़े बहुत. लॉ में तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस नहीं हुए हैं. मैंने उसके बाद इनफैक्ट एक अमेंडमेंट्स क्लास भी ली थी. थोड़ी बहुत वैल्यूज बदल गई हैं उसकी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हाँ चेंजेस अमाउंट में होंगी चारों. लेकिन आपको वो थोड़ी मदद मिल जाएगी. अभी जो प्रॉब्लम आपको फेस होगी गोइंग फॉरवर्ड कि यार किस पेज में क्या है, तो उससे तो बेटर ही रहोगे अगर आपने पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं या हैं आपके पास. देन आई डोंट थिंक यू नीड टू वेस्ट योर टाइम इन वाचिंग द ग्लैम लेक्चर, बिकॉज ये प्रॉब्लम तो रहेगी आपकी. ठीक है. ये तो अभी शुरुआत हुई है. ठीक है. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बैकर में है ही नहीं. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ग्लाइम में है, बैकर में नहीं हो, या उल्टा भी हो सकता है जो बैकर में है ग्लाइम में नहीं है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम तो कॉन्स्टेंटली रहेगी आपकी. तो अगर आपको बिल्कुल ही ऐसा चाहिए तो आप पुराने लेक्चर्स देख लो. कुछ अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स करो आप वैल्यूज को. बहुत लंबा चौड़ा चेंज आएगा नहीं. अगर गोइंग फॉरवर्ड जनवरी में भी चेंजेस आते हैं, देन आई कीप द अमेंडमेंट सेशन फॉर यू फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है. तो वन अप्रोच कुड बी दिस. अदरवाइज सेकंड अप्रोच इज एक बार पढ़ते जाइए, इसकी PDF देख लीजिए अगर वो दे सकते हैं. तो फिर बैकर मत करना आप. फिर मैं दो दो करोगे तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. अगर आप नए लेक्चर्स ही करना चाहते हो तो एक ही करो, तो फिर ग्लाइम ही करो बस. आप फिर बैकर मत करो आप. इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? बैकर में अगर कुछ चीज रह जाएगी, ठीक है, वो मेरी मैं कर लूंगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है.
बैकर में मुझे लगता है कि यार ये वाले, मेरे को मुझे लगता है बैकर में कि यार ये वाला टॉपिक ग्लैम ने छोड़ दिया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ करवा दूंगा, जो मैं रैग में भी कर रहा हूँ। रैग में मैं आज के टाइम में ग्लैम पढ़ा रहा हूँ, और देर आर मैनी थिंग्स जो ग्लैम में छूटी हुई हैं वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए लेक्चर्स कर रहे हो तो ग्लाइम से ही बुक बुक भी ग्लाइम पढ़ो, लेक्चर्स भी ग्लाइम के देखो। लेकिन आप बैकर पढ़ रहे हो तो पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। दिस इज माय सजेशन। दोनों ही बराबर हैं चारों, कोई बहुत फर्क फर्क नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। बट आपको बैकर है तो वाई टू वेस्ट मनी फॉर ग्लाइम अगेन। तो अगर बैकर का लॉग इन एक्सेस वगैरह है आपके पास, तो फिर ग्लाइम मत खरीदो आप, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि बैकर का वैलिड होगा ना अभी आपका। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं बुक के एंगल से बोल रहा हूँ आपको, राइट। प्रैक्टिस के लिए फिर चारू यू हैव टू स्पेंड द मनी अगेन फॉर दिस। तो बैकर है, बैकर को यूज कर लो, प्रैक्टिस में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा। ग्लाइम थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप देखो ना ग्लाइम के क्वेश्चंस भी देखोगे तो बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं, थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। जनरली इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते नहीं है सीपीए में। इज इट ओके? तो गोइंग फॉरवर्ड अप्रोच सोच लो आपको कैसे करना है। अगर आपको बैकर से ही करना है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे ग्लाइम से मेरे को नए लेक्चर्स चाहिए, तो ग्लाइम की बुक ले लो उनसे, लोगों से, ठीक है। उनसे जैसे जैसे आकांक्षा इस सेइंग के ऑडिट की पीडीएफ दे दी है। हाँ, तो नई पीडीएफ का प्रिंट, अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है 4 रुपये, तो प्रिंट ही निकलवा लेना आप। वो भी अच्छा है, कितना 200-300 रुपये में प्रिंट निकल आएंगे आपके। 500-600 पेजेस की बुक होगी। तो आप, आपके लिए भी सेल्फ स्टडी, आपके लिए पीडीएफ से कैसे पढ़ते रहोगे आप भी घर पे भी ना। तो प्रिंट रहेगा आपके पास तो खुद भी कर लोगे, या फिर तो वीजीएलडी टीम से बोल दो, वो आपको प्रिंट निकलवा के कुरियर करवा दें। अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है तो मैं सजेस्ट करूंगा पीडीएफ भी रख लो, और उसके बाद प्रिंट भी निकलवा लेना आप। मैं ये सजेस्ट करूंगा। दो ये गलत है मुझे बोलना कॉपीराइट इशू की वजह से, बट आई एम विद यू फॉर योर, फॉर आपके प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, इसलिए हम जस्ट सेइंग होता है। ताकि कई बार होता है ना, बुक में पढ़ रहे हो, मार्क कर रहे हो, अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा कि ये नो बूट है, ये कंट्रोल है, आप भी लिख सकते हो। वरना पीडीएफ में क्या ही लिखोगे आप, मैं उस एंगल से कह रहा हूँ। तो पूछ लो आकांक्षा, जब आपको ऑडिट की पीडीएफ मिल गई तो इसमें पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम है? ये भी मिल जाएगी। आप सभी लोग पूछोगे तो शायद दे दें वो आपको, ठीक है। आई अंडरस्टैंड गाइस, थोड़ा सा ना ये ट्रांजिशन का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा जब तक एक बार, या फिर तो सिर्फ ग्लाइम होगा तो कन्वीनियंट रहता है, या सिर्फ बैकर होता तो कन्वीनियंट है। आप आप लोग ट्रांजिशन में बीच में फंस गए हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम गाइस, बट आई विश आई कुड डू एनीथिंग विद दिस। लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या आएगी, यू कैन डू दैट ऑल्सो। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गुरप्रीत, मैंने पूरी बात आपको ये तो समझाई आपको कि प्रीवियस बैच देख सकते हो, बैकर के ही देखने हैं, वो जो अमेंडमेंट आएंगे उसको कर लेना आप अमेंडमेंट अलग से। एक बार आप पूछिए, आप 2-3 लोग एक बार लिखिए कि पीडीएफ कब आएगी, बिकॉज जैसे आपके पास ऑडिट की है वैसे इसकी भी मंगवा लीजिए आप, तो शायद दे दें वो आपको। अब यू हैव टू आस्क देम ऑल्सो, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है आकांक्षा आपके पास, वरना फिर पढ़ोगे कैसे आप? ये भी तो बात है ना, फिर पढ़ोगे कैसे आप खुद से? बिना बुक के या पीडीएफ के कैसे पढ़ोगे आप? फिर तो एक अलग जोन हो जाएगा ना, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, बैकर में कुछ और दिया हुआ है, तो या फिर तो बैकर भी साथ साथ पढ़ते चलो आप सेल्फ स्टडी करके। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? आई थिंक हम अलग ही टेंशन पे चले गए अभी। हम्म, ठीक है, आज यहीं रोकता हूँ मैं, ठीक है। कल से आई विल स्टार्ट रेगुलरली, विल स्टार्ट द क्लास एट 9:30 गाइस, ठीक है। people I think have dropped down too. So we can have a regular classes from 9:30 guys, and I'll continue with this only guys, ठीक है। मैं इनकॉर्पोरेशन के साथ ही कॉपरेट कॉपी करूंगा। I'll continue with that only। ये ट्रिकी टॉपिक है guys, आज मैं थोड़ा स्लो चलाया है मैंने गाड़ी आज, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू ऑल्सो। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन गाइज अदर देन दैट? एनी कोई क्वेश्चन और है गाइज आपका? नो, नो क्वेश्चन आकांक्षा? नहीं? यस आप कार्तिक प्लीज राइट टू देम, आप हेल्प डेस्क पे लिखो। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर यू गेट।
अच्छा, रेगुलेशन का डाउट है, पूछ लीजिए। आई विल, बट आकांक्षा चालू कुछ होगा नहीं। आई हैव मल्टीपल टाइम्स, कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू कुछ नहीं होगा, तभी आई एम टेलिंग यू टू डू इट। आई डन मेनी टाइम्स। कार्तिक, आस्क यू क्वेश्चन। हम्म। सर सर इज माय वॉइस ऑडिबल? यस यस कार्तिक, बताइए। सर मेरे एक्चुअली सर मेरे एग्जाम है सर 10 दिसंबर को। सर मेरे थोड़े डाउट थे, आप थोड़े वो सॉल्व कर देते हैं मेरे एक्चुअली सर। एक दो टीबीएस में डाउट है सर। अच्छा, तो एक काम कर दो कार्तिक, आप ना टीबीएस मुझे भेज देना। टीबीएस में किस टीबीएस में क्या डाउट है वो भेज दो मुझे, और मैं क्लास के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे। बट सर आपके सर मेरा आपका आपका नंबर नहीं है सर मेरे पास। अच्छा, मैं मैसेज कर देता हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो मुझे आप टीपीएस नंबर और स्क्रीनशॉट भेज देना, क्या प्रॉब्लम है वो भेज देना आप मुझे, विल डिस्कस हियर। ओके, थैंक यू सर। सर एक मिनट ठीक है, नंबर नोट करने दीजिए। हाँ हाँ, बिंदास बिंदास बताओ। ठीक है, तैयारी कैसे चल रही है कार्तिक? सर अच्छी चल रही है सर। मेरे सर मेरा पहला एग्जाम में दे दिया है ऐसे, ये स्टूडेंट एग्जाम 1। फिर उसके अंदर सर मेरे 78 आया सर। ये आपके साथ री स्कोर ठीक है? आप अभी एक मॉक दिया है आपने कि मिनी सीरीज, मिनी एग्जाम दिया है? नहीं सर, ये वो मॉक दिए सर। मॉक दिया है, ऐसे कब हाँ। दिया? 78 दिए आए हैं। हाँ जी सर, और 78 आपके साथ ठीक है? आज के, हाँ हाँ, अभी तो बहुत, पूरा एक महीना पड़ा है, आराम से तैयारी कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत टाइम है। और सर एक चीज और पूछनी थी सर। सर जो ये जो आप एक्चुअली जो पेनल्टी है सर, ये बहुत सारी है। तो मतलब पर वही ये जो पेनल्टी पेनल्टी। पेनल्टी के अमाउंट सर एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट अमाउंट याद करने पड़ेंगे। जैसे कॉपरेशन की आपने कहा था कि वो 10 मिलियन, और वो विच एवर इज हायर, कॉपरेशन की अलग है। या फिर जो अगर तुम वो इंडिविजुअल है तो उनकी अलग है। 20% वो अंडर 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 एस्टिमेट वो पेनल्टी हाँ एक्यूरेसी हाँ, वाली। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये सर बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट याद करने पड़ेगा क्या सर? एग्जैक्टली करने पड़े, गलत लिखाओगे तो कैसे होगा? अब 20% की 30% लिखाओगे तो गलत हो जाएगा ना दोस्त। बट सर बैकर के एमसीक्यू में ऐसा ऐसा कुछ है नहीं ना कि आपको कि ऐसा कुछ मैंने एमसीक्यू देखा नहीं है। कि मैंने सारे पेनल्टी एमसीक्यू। पूछ रहे हैं, डॉलर वैल्यूज पूछ रहे हैं, आप कह हाँ रहे हो? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखो जी। यार दोस्त, ये तो है ही, ठीक है। वो पूछते तो नहीं है, ठीक है। पूछते भी है, पूछते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी पूछते, ठीक है। बड़े सारे केसेस में मैं स्टूडेंट से पूछता रहता हूँ एग्जाम के बाद कि क्या हुआ, क्या वैल्यूज पूछते हैं या नहीं पूछते। तो मिक्स्ड ओपिनियन आता है। 70% स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। 30% स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ कुछ वैल्यूज पूछ रहे हैं। तो यार आप इतने पैसे लगा रहे हो, इतना एफर्ट हाँ लगा रहे जी, हो, तो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि याद कर सकते हो तो कर लो यार। ठीक है सर। हाँ जी सर। है ना? थोड़ा ओके। हाँ मतलब इतना, इतने पैसे भी लगा रहे हो, इतना एफर्ट्स भी लगा रहे हो, दिन रात लगा रहे हो, 5 6 10 वैल्यू छोड़ के ही क्या कर लोगे आप? और बहुत पेनल्टीज है भी नहीं। इंडिया में तो सीए में हम कितनी वैल्यूज रखते हैं यार, और तब तो कितनी ज्यादा चीजें रखते हैं हम तो ये तो इतना मुश्किल भी नहीं है सर। तो कर लो, मैं सजेस्ट करूंगा। वो सब मत करना, जैसे बहुत सारे स्लैब्स होते हैं ना, जैसे एओटीसी स्लैब, जैसे अडॉप्शन क्रेडिट किया था हमने, अडॉप्शन क्रेडिट के अंदर स्लैब है वहाँ पे। यस मैम, हाँ, सर वो तो याद हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते ही वो तो। अरे वो स्लैब छोड़ देना था, उसकी अच्छा। डॉलर वैल्यू याद करनी थी कि हर हर पर एफर्ट कितना मिलता है। हाँ याद है सर वो आपको? याद है। हाँ, वो हाँ। याद कर लो। उस तरह के स्लैब छोड़ देना। जो इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन वाले स्लैब्स है ना, उनको छोड़ देना। ठीक है, ठीक है। उस तरह के स्लैब छोड़ देना। और जो इंडेक्स फॉर इन्फ्लेशन वाले स्लैब नहीं है, जैसे कि आपने वो किया हुआ ना, AMC, एडिशनल मेडिकेयर टैक्स एडिशनल वाला। मेडिकल टैक्स, हाँ। हाँ, और जो एनआईटी में भी सेम ही लिमिट है, टू हंड्रेड हाँ, टू हाँ, हंड्रेड थाउजेंड टू वो हाँ, वाली हाँ। लिमिट। वो चेंज नहीं होता हर साल, तो उसको याद कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा दोस्त इसमें, मतलब देखो, जहां तक है 90% दे विल नॉट आस्क यू, 90% दे विल नॉट आस्क यू। लेकिन मैं 10% की रिस्क नहीं लेना चाहता आपके हाँ जी, साथ। हाँ जी। है ना? क्या क्योंकि फायदा, क्या फायदा रिस्क लेके, आप इतने पैसे भी क्योंकि सर लगाओगे और। मैंने मिनी एग्जाम भी कर लिए, एग्जाम भी करे वाला फर्स्ट वाला, उसके अंदर कोई किसी ने भी पेनल्टी अमाउंट पूछा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, लेकिन छोड़ो मत, मैं सजेस्ट करूंगा छोड़ो हम्म, मत, कुछ नहीं जाता यार, 3 दिन लग जाएंगे एक्स्ट्रा, क्या हो जाएगा? लेकिन ओके छोड़ के सर। चले गए, पूछ लिया तो स्टेक पे ज्यादा चीज है। थैंक यू सर, ठीक है। ठीक है, चलो आप अपनी क्वेरीज भेज देना मुझे, एंड किसी भी दिन ऐसे ही कर लेंगे क्लास के बाद।
spend 5 minutes के लिए. ओके सर, थैंक यू, ठीक है. Okay, thank you. Bye. Good night, guys.